Excellencies, both of you held talks, and my question is to Prime Minister Narendra Modi. You've held delegation-level talks, but we often see, as you did in the US, both you excellencies beyond the delegation-level talks go into a huddle and hold talks tete-a-tete. And what exactly do you talk about, and what is this friendship, and which are the issues that you discussed, and which are the issues that you can share with us? Yes, we held very detailed talks, and some of these, and the results and the issues that were discussed, let's keep them behind curtains. Why do we keep going into huddle and hold talks tete-a-tete? Well, I'd just like to say that I'm fairly new in this area. But with this little experience that I have gained over this short period of time, I can say that relations between countries depends less on full stops and commas and more between the relationship between leaders, the openness, how much they know each other, and the chemistry between them. This matters more and is very important. In fact, far from the camera, when we speak, then we become closer to each other. Barack and I have forged a friendship. There is openness when we talk, and we even joke and share a lot together. I think this is the chemistry which has not only brought Washington and Delhi, Barack and I closer, but also the two peoples of the two countries closer. Personal chemistry between leaders is very important, and this can only grow. Thank you. Well, I would just add, the Prime Minister, as I said, it caused great excitement in the United States when he visited. And I do think that in addition to a personal friendship that we've been able to build in a fairly brief amount of time, we're also reflecting the warmth and affection between the Indian people and the American people. Part of the reason we're such natural partners is because we share values as former colonies, as the two largest democracies in the world, as entrepreneurial nations, as people who believe in the freedom and dignity and worth of all individuals. And so it's not surprising then that we have a friendship, because hopefully we're reflecting the values of our peoples. What I'm very excited about is given the Prime Minister's energy and ambition for his country and lifting people out of poverty and moving forward and on the reform agenda that he's put forward, that affection can then be translated into very specific actions, and we're seeing that reflected here today. He's right, though, we can't tell you everything that we talked about. Although I will share one thing, and that is we compared how much sleep each of us is getting. And it turns out that Modi is getting even less sleep than me. But, of course, that's because he's still new. After you've been doing this for about 6 years, maybe he'll be able an extra hour. All right? Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. We come to the end of this event. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी अपनी बात कही। दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंध, आगे बढ़ते कदम, और इन सब के बीच कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं, लेकिन इन सब के साथ ही दोनों देशों के आर्थिक संबंध, व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ना, डिफेंस टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान और उसमें साझा उत्पादन का जिक्र होना, 100 अरब तक
अरब डॉलर तक दोनों देशों का व्यापार बन जाए, संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका बढ़ जाए। इन सारे संकेतों के साथ अमेरिका की जो खास दृष्टि थी जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर, उस पर उसे एक बड़ी सफलता मिली, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया कि ये एक प्रभाव, और जिसका जिक्र हो रहा था कि ग्रीन हाउस गैस में कटौती के लेकर जो चीन के साथ समझौता हुआ है, क्या वो भारत उस दिशा में आगे कितना बढ़ेगा। लेकिन बहरहाल केसी सिंह साहब, निकला क्या? देखिए, परमाणु एग्रीमेंट में मेरे को ये लगता है इन्होंने आदेश दे दिए हैं आपस में बात करके जी कि आप इसको फाइनलाइज कर दें। मेरे को लगता है अगले कुछ हफ्ते में या महीने में ये फाइनलाइज हो जाएगा, क्योंकि उसमें ट्रैकिंग को जो मुश्किल वाले इशू थे वो इन्होंने निकाल दिए हैं बात करके, लेकिन आज वो नहीं हो पाता। तो उसमें डिटेल, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, ये अगले कुछ हफ्ते में हो जाएगा। संदेश ये दिया है। क्लाइमेट चेंज में प्रधानमंत्री ने कुछ हिंट नहीं दिया, लेकिन राष्ट्रपति के बाद से ये लग रहा है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जिन पे उन्होंने जोर लगाई हुई थी, जो एक कनेडियन एग्रीमेंट पे बेस्ड है, जो हमारे एयर कंडीशनर्स में, इनमें सब में यूज़ होते हैं, कि इस साल वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब हिंदुस्तान शायद मान गया है कि हम उसको रिप्लेस कर देंगे अल्टरनेटिव दूसरे जो केमिकल्स हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका से आई थी। हो सकता है इसके साथ एयर कंडीशनर, दूसरी मशीनें, फ्रिज, इनकी कीमतों पे असर पड़े। इस साल होता है, कब होता है, कुछ कमिटमेंट दी है जो राष्ट्रपति ओबामा की बात से लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि इसके साथ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी होशियारी के साथ जवाब दिया इसका कि हमारे पे दबाव किसी देश का नहीं है, दबाव हर एक देश पे भविष्य का है कि हमने कैसा, हमें तो अब दिल्ली में पता ही है हमारा वातावरण कैसा है। दिल्ली वाले तो हम समझते हैं हमारे शहरों में क्या हालत है, हमारी कंट्री साइड में, हमारे दरियाओं में क्या हालत है। तो मोदी उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारी ज़रूरत है, ये कोई किसी की प्रभाव की बात नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि किस स्पीड पे चलोगे, किस तरीके से चलोगे, किस स्पीड पे चलोगे, वो तय नहीं हुआ अभी। जनरल मेहता साहब, मुझे थोड़ी मायूसी हुई है। मैं समझता था कि जैसे सुबह से सिग्नल आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन लीक हो रही है कि ये परमाणु डील थ्रू हो गई है, और दोनों ने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, मूविंग टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन। एक ने शब्द इस्तेमाल किया ओबामा ने, टुवर्ड्स फुल इम्प्लीमेंटेशन, और हमारे प्रधानमंत्री ने इंडिकेट किया है कि उस दौर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो बातें लंदन कॉन्टैक्ट ग्रुप ये नई कोई चीज़, काफ़ी अरसे से इनकी बातचीत चल रही है और ये लोग समझौता नहीं कर पाए लंदन में। तो मैं सोच रहा था कि ये जो वॉक इन द गार्डन, उसमें कुछ बातचीत होगी, कुछ समझौता होगा, लेकिन वो हो नहीं पाया है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये होएगा नहीं, एक कदम आप आगे बढ़े हैं, ये ठीक है, लेकिन जो निराशा की बात है, क्या वो इस मायने महत्वपूर्ण है कि जिस का जिक्र हो रहा था इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप लौटेंगे, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, नहीं तो एक दूसरा, अगर अमेरिका की दृष्टि से उसके लिए तो एक बेहतरीन चीज़ हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका, ओबामा की जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है बेन रोड्स का कहना था कि अगर भारत जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस को लेकर कटौती पर सहमति जताता है तो ये उनकी बड़ी सफलता होगी। अमेरिका के लिए पॉजिटिव है ये इंडिकेशन, इंडिया के लिए नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा प्रायोरिटी आइटम सिविल न्यूक्लियर डील थी। एग्जैक्टली, वो इंडिया के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी, यूएस के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। यूएस यही तो कह रहा है हमसे कि हमने आपको सिविल न्यूक्लियर डील दी है, जिससे आपको न्यूक्लियर स्टेट माना गया है, आपको लेजिटिमेसी मिली है, आपको ये 4 न्यूक्लियर रेजिम्स में शामिल करने का कि आपका काम था कि उसका रिस्पांस में आपने हमें ये सिविल न्यूक्लियर डील को इम्प्लीमेंट करना था। आपने 8 साल में अभी तक या 6 साल में कुछ नहीं किया। हम जरा हैदराबाद हाउस में चलते हैं। जब जॉइंट स्टेटमेंट निकलेगा, अब जॉइंट स्टेटमेंट हम वही पूछने जा रहे हैं, जॉइंट स्टेटमेंट कोई आएगा या नहीं आएगा? स्मिता, क्या कोई जॉइंट स्टेटमेंट आएगा इस पे, या जो समझौते हुए हैं या जो कहा गया सिर्फ उसी को शब्दशः लिखा जाएगा, क्या आएगा?
स्मिता, आवाज आ रही है, हमें तो जवाब चाहिए कि क्या ज्वाइंट स्टेटमेंट भी आएगा? डिटेल चलिए, वो आवाज लगता है कुछ नहीं, वो पक्का आएगा हर एक मीटिंग के, हर एक समिट के बाद। नहीं, कैटेगरली तब इस ज्वाइंट स्टेटमेंट का मतलब क्या निकाला जाए कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, आगे बढ़े समझौते के हैं। मद्देनजर? इसका मतलब इससे मेरा अंदाजा ये है कि जो एक दो मुश्किल इशू थे उसको इन्होंने तय कर लिया कि किस तरीके से करना है, लेकिन अब इतना समय नहीं था। किसी कंक्रीट किसी फील्ड में कोई समझौता? एक तो डिफेंस में लग रहा है, जो वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक साथ मिलकर टेक्नोलॉजी पे हो गया। हाँ, उसमें हो गया कि किस चीज में इकट्ठे को प्रोडक्शन होगी। और डिफेंस, रिन्यूअल ऑफ डिफेंस, वो तो ऑटोमेटिक था, वो 10 साल का एग्रीमेंट है, 10 साल आगे कर दिया। उसमें कोई तब्दीली की हो वो बाद में पता चलेगा, लेकिन एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना तो कोई नहीं, उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ये मीटिंग एक उम्मीद जगाती है सिर्फ। इसमें यही लगता है कि कम से कम इसमें क्या होगा कि नहीं, ये दोनों डेलीगेशंस एक 6 महीने साल और झगड़ा करती रहती इन चीज़ों पे। अब इन्होंने दोनों नेताओं ने मिलके इनको आदेश दे दिए हैं कि इसको तय करो, तो ये मेरे को लगता है अगले कुछ हफ्ते में या कुछ महीने में ये तय हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या हिंदुस्तान ने कोई कमिटमेंट दी है, ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया में। नहीं, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन से डेट मीन्स जो नई टेक्नोलॉजी आएगी, जो नया केमिकल आएगा, वो आपके पास मौजूद नहीं है, नहीं, तो वहां अमेरिका से आएगा, उससे महंगाई होगी, उससे वो चीजें महंगी होंगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, वो चीजें महंगी होंगी, वो मशीनों में फिर तब्दीली लानी पड़ेगी किस तरीके से। स्मिता, आवाज आ रही है तो बताइए, ज्वाइंट डिक्लेरेशन कोई निकल रहा है, आपके पास आया है? जी, प्रसून साझा घोषणा पत्र भी जो है वो जारी की जाएगी, लेकिन जो आमतौर पर जो प्रोटोकॉल होता है कि जब दो जो शीर्ष नेता हैं उनके 1-on-1 जो मीटिंग्स की अपॉर्चुनिटी है, जब आमतौर पर वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ही जो है साझा संयुक्त बयान जो है वो जारी किया जा सकता है। तो मुमकिन है कि आज देर रात तक या फिर कल सुबह तक जो है ये साझा बयान जारी किया जाए, जिसमें मोटा मोटा आज जो इस प्रेस रिमार्क्स में हालांकि साफ संकेत दे दिए गए। जो सबसे बड़ी बात थी कि जिस तरीके से जो परमाणु समझौता 6 साल पहले जिस पर हस्ताक्षर होने के बावजूद वो ऑपरेशनलाइज नहीं हो पा रहा था, आज ये एक तरीके से नरेंद्र मोदी की कामयाबी रही कि उसको जो ऑपरेशनलाइज करने के लिए जितने भी पेंच उलझे हुए थे, खास करके वो भले ही जो सप्लायर्स हैं उनके लायबिलिटी को लेकर हो या फिर अमेरिका की तरफ से जो निगरानी रखने की क्लॉजेस थे, उनको अब हटा लिए गए हैं। पिछले 4 महीने में जो 3 हाई कॉन्टैक्ट ग्रुप के मीटिंग्स हुए, वियना में, लंदन में, दिल्ली में, और जिसके बाद जो ये कामयाबी हासिल हुई, तो ये तमाम बातें जो है निश्चित रूप से और डिटेल्स के साथ उस घोषणा पत्र में भी नजर आएंगी। नहीं, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि परमाणु समझौते के सिलसिले में 2 कदम और आगे बढ़ गए हैं। ऑपरेशनल होने की स्थिति में कब तक चीजें आएंगी, इसका कोई कंक्रीट निकल कर आया इस बैठक में? देखिए प्रसून, अगर आपको याद हो कि 2 अमेरिकी ऐसी कंपनियां हैं जिनको 1000 मेगावाट से ज्यादा की जो है ऊर्जा प्लांट्स ऑलरेडी रिएक्टर्स उनको दी हुई हैं, लेकिन अभी तक वो रन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि भारत ने 2010 में जब से अपना घरेलू जो परमाणु कानून पास किया था, उसके बाद जो है तमाम पेंच फंस गए थे, और इसी को लेकर जो है भारत और अमेरिका के बीच में लगातार चर्चाएं हो रही थी। 2013 का साल खास करके द्विपक्षीय रिश्तों के लिए काफी ज्यादा खराब रिश्ता भी रहा था, लेकिन अब जो है देखिए ये मुझे लगता है कि अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं, खास करके अमेरिका में जब हम वेस्टिंग हाउस की बात करते हैं, जीई की बात करते हैं, अब अगले कुछ महीनों के अंदर जो है ये तमाम, क्योंकि जो कमर्शियल ऑपरेशंस है अब वो ऑन है, जो तमाम पेचीदगियां थी वो दूर हो गई हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है यहाँ पर जल्द से जल्द अब अपना काम शुरू कर पाएंगे। हालांकि ओवरनाइट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि अगले 15 दिनों में ही जो है आपको परमाणु ऊर्जा मिलनी जो है शुरू हो जाएगी अमेरिकी कंपनियों के हवाले से। उसके लिए आपको कम से कम जो है अभी 3 से 4 साल तक का कम से कम इंतजार करना होगा। नहीं, तो ये इसमें लोगों की रुचि है कि क्या उसके भीतर जो ट्रैकिंग को लेकर था मसला, जो इंश्योरेंस को लेकर मसला था, आपकी टेक्नोलॉजी आएगी तो उसको ऊपर इंश्योर किया जाए ना किया जाए, पैसा भारत का लगेगा किसका लगेगा, क्या कुछ माइन्यूट चीजें पता चल पाई कि किस दिशा में ये कदम आगे बढ़ा है?
प्रसून माफ कीजिएगा, यहाँ पर दरअसल अभी काफी सारी मीडिया टीमें जो है निकलने की कोशिश कर रही है, इसलिए बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है इस बॉलरूम में। लेकिन आपका सवाल अगर मैं सही समझ पाई हूँ, देखिए पेचीदगियां इन मुद्दों को लेकर ही थी, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां, रूस की जो कंपनी है, जैसे आप रोसएटम की अगर बात कर ले, उनके पास में सॉवरेन गारंटीज होती है क्योंकि वो स्टेट ओन्ड होती है। अमेरिकी जो कंपनियां हैं वो निजी कंपनियां हैं। और ये जो भारत का घरेलू जो परमाणु कानून है, जो लायबिलिटी एक्ट है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से एक एटॉमिक डिजास्टर को झेला हुआ है और जिसके बाद से जो है खास करके लोग और ज्यादा कहीं ना कहीं एप्रीहेंसिव रहते हैं कि आगे चलकर जो है कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी सप्लायर की गलती की वजह से कोई हादसा हो जाए और किसी विक्टिम को जो है कोई जुर्माना ना मिल सके, कोई कॉम्पेंसेशन ना मिल सके। लेकिन सप्लायर्स नहीं चाहते थे कि उनके लिए कोई अनलिमिटेड कॉम्पेंसेशन का कोई प्रावधान हो इस कानून की तहत। उसे लेकर एक अलग से आश्वासन जो है सरकार बाहरी तौर से दे रही है। उसको कानून के अंदर चेंज करने के लिए वापस संसद जाना मुश्किल है, क्योंकि कानून में बदलाव के लिए सरकार के पास राज्यसभा में जो है उस तरीके से आंकड़े नहीं है। और ये टफ जो प्रोविजंस है, जो धाराएं हैं कानून में, ये इनफैक्ट जब बीजेपी उस वक्त विपक्ष में थी तब उन्हीं लोगों की वजह से जो है ये शामिल भी किए गए थे। दूसरी बात, जहां तक इंश्योरेंस का सवाल है, देखिए 1500 करोड़ का एक इंश्योरेंस पूल बनाने की बात की जा रही है। इसमें 750 करोड़ जो है क्या इस माइन्यूट चीजों पे बातचीत हुई होगी या नहीं हुई होगी? भारत सरकार की तरफ से जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसके हवाले से इसमें लगाया जाएगा और री इंश्योरेंस को लाया जाएगा। तो इस तरीके से जो तमाम मसले हैं, और जैसा नरेंद्र मोदी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद हाउस में आपसे कुछ देर पहले कहा कि जो तमाम एक्सपोर्ट रेगुलेटिंग जो बॉडीज हैं 4, जो कहीं ना कहीं निगरानी रखती हैं एटॉमिक कैपेसिटीज पर, क्षमताओं पर, उनमें एंट्रीज के लिए भारत के दाखिले के लिए भी जो है खास करके न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में जो है अमेरिका अब पूरी तरीके से भारत का समर्थन करेगा। ये जो मसला है खासतौर से जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि इस पे कुछ कदम आगे बढ़े हैं और ये कब तक इम्प्लीमेंट चीज़ें हो पाएंगी, हमारी संवाददाता ही बता रही है कि क्या ये इंडिकेशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि ये जल्द हो जाएंगी? क्या ये इंडिकेशंस हैं कि जो उलझने थी उस पर सहमति हो गई है, बस उसके लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं, वो धीरे धीरे चीज़ें क्या है ये? जैसे वो ट्रैकिंग की हम बात कर रहे थे जी, तो हिंदुस्तान ने कहा, भारत ने कहा होगा कि ये नेगोशिएबल नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अमेरिका के लिए और हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल हैं, जिसको हम किसी भी हालत में नहीं मान सकते। वो उन्होंने तय कर लिया, चलो इसको छोड़ दो। अब जो नेगोशिएबल है उस पे बैठ के कितना इंश्योरेंस का पैसा होगा, किसने देना है, कितना बड़ा फंड होगा, उसका प्रोजेक्ट पे क्या असर पड़ेगा, वो चीज़ें इनको तय करनी पड़ेंगी अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में। जनरल मेहता, एक दूसरी बात इसमें निकल कर आई थी कि एशिया के क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा का मसला था, समुद्री इलाकों में भी साथ मिलकर, ये कितना इफेक्टिव होगा और कितना जरूरी था? इसमें तो ये देखना पड़ेगा कि जो पहले स्टेटमेंट बनी थी जिसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स और खासकर साउथ चाइना सी में, कि उसका कोई मेंशन है जॉइंट स्टेटमेंट, वो पहले आ चुका है एक मर्तबा। हाँ। तो लेकिन मैं जो बात निकली है अफगानिस्तान के ऊपर जी, वो महत्वपूर्ण बात है कि वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर बात हुई है और अफगानिस्तान के ऊपर जो भारत का योगदान है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। हम लोग अभी अमेरिकन अभी हम उधर हैं अफगानिस्तान में, और हम चाहते हैं कि भारत जो योगदान कर रहा है उसको करता रहे। तो अफगानिस्तान वो छोड़ के भागेंगे नहीं। हाँ, कहते हैं हम निगरानी रखेंगे, अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो है उसको मानेंगे। लेकिन मैं वापस आना चाहता हूँ जी, उस पे परमाणु उस पे ऑन द न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर, क्योंकि देखिए मोदी साहब ने इंग्लिश में ये कहा, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट was centerpiece of new economic opportunities of clean energy। ठीक है, सेंटर पीस है। और वही हम कह रहे हैं कि बिल्कुल इसके बिना ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता। उसके बाद वो कहते हैं कि हम 6 साल से लगे हुए हैं इसके ऊपर। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अचीविंग द एग्रीमेंट विद इन लॉ, मैंने कि हमारा विद इन लॉ, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एंड कमर्शियल वायबिलिटी, 3 चीजें आ गई हैं। लॉ, दोनों की लॉ, कमर्शियल वायबिलिटी और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस।
तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नहीं, ये कंट्रडिक्शंस तो पहले भी रहे हैं। नहीं तो आप इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंड अब इसमें स्पष्टता नहीं आई है, नहीं आई है। अगर जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ निकलता है तो उसको देखना, लेकिन ये कह सकते हैं हम कि फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ है। आपके जो पत्रकार, हाँ, वो भी हमारी रिपोर्टर भी इस बात को कह रही है कि फॉरवर्ड मूवमेंट है। देखो, जब आप ये कहते हैं इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, उसका मतलब है IAEA को जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उसके मुताबिक चलेंगे, आपकी ट्रैकिंग नहीं चलेगी। व्हेन यू से कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, मीनिंग वी डोंट वांट एनी, और इसके आगे एडिशनल ऑब्लिगेशन कोई आप नहीं लगाएंगे। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का ये मतलब है, लॉ का मतलब है हमारा डोमेस्टिक लॉ, कि जो हमारा लाइबिलिटी लॉ है उसकी उल्लंघना नहीं करेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे, वो तो पता ही है। और तीसरा जो है कि हाँ वायबल होना चाहिए, वो तो मालूम है। आशा तो इस बात की थी कि ये थोड़ा आगे चल जाएगा और तालियां बजेंगी और ये समिट जो जहां पहुंचना चाहिए था, उस समिट का ब्रेक थ्रू हो गया है। अब तो आप यही कहेंगे कि 2 कदम आगे बढ़े हैं। ये तो नारियल फोड़ने की बात कर रहे थे कि शायद बाहर निकल के नए न्यूक्लियर अमेरिकन प्लांट में नारियल फोड़ा जाए। हम ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच 2-3 चीजें और हैं। क्या पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच की केमिस्ट्री वाकई इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि साथ जो बातचीत दोनों की हुई उसके बाद साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच इस बात का भी इंतजार है कि किस रूप में ये साझा घोषणा पत्र में कैटेगरली किन किन चीज़ों का जिक्र किया जाएगा, इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। केसी सिंह साहब, अब आखिर में इस डिस्कशन के अगर आए, इस पूरे दौर में निकला क्या, और ये क्या सिर्फ आने वाले वक्त के लिए बेहतर है या वाकई भारत के लिए एक बेहतरीन ये पूरी बातचीत निकल कर आई है? देखिए, सबसे शक्तिशाली देश दुनिया का है, उनके राष्ट्रपति यहाँ आते हैं, अभी 2 साल उनके बचे हैं, तो इसलिए दोनों में केमिस्ट्री, प्रधानमंत्री और उनके बीच में सारे मुद्दों पे बात हुई है। जहाँ जहाँ कई चीज़ें फंसी हुई थी, इन्होंने आपस में बात करके डेलीगेशन को बोला है कि ये निकालो, इसमें समय ना वेस्ट करो। उन्होंने इसका उदाहरण दिया है कि 6 साल पहले इसमें न्यूक्लियर डील हुई है, उसके बाद अभी तक उसको हम लागू नहीं कर पाए। तो इस तरीके से तो आगे हिंदुस्तान नहीं बढ़ पाएगा। तो उसमें भारत को कुछ वाकई क्या ब्रेक थ्रू की जरूरत थी और चाहिए था उस रूप में? वो था, क्योंकि अगर 6 साल हो गए आपको उस पर बहस करते और उसके बाद हमारा लॉ आ गया 4 साल पहले और वो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में और मुश्किलात हो गई, तो उसको कौन सुधारेगा? अमेरिका के साथ अगर आप तय कर लेंगे, बाकी सारे देश उसके बाद लाइन अप हो जाते हैं। हमने कोशिश की, हम ऑस्ट्रेलिया से कर लें, जापान से कर लें। याद होगा आपको, आप प्रधानमंत्री वहाँ पे गए हैं, जापान नहीं कर पाया आपके साथ। तो अमेरिका इन सारी चीज़ों का हैंडल है। अगर अमेरिका के साथ आप कर लेंगे तो सारे लाइन अप हो जाएंगे, सब जगह चला जाएगा। लेकिन एक ऐसी बातचीत जिसका लेकर इंतजार समूचे दुनिया को रहा होगा कि किस दिशा में भारत और अमेरिका की ये पूरा का पूरा जो दोस्ती का सिलसिला है, किस दिशा में जाएगा। तो एक अच्छी लकीर खींची है। हालांकि किसी ब्रेक थ्रू का जो इंतजार हो रहा था वो नहीं मिल पाया है, और खासतौर से परमाणु मसले को लेकर। लेकिन क्लाइमेट चेंज सिलसिले को लेकर पहली बार एक गंभीरता और बड़ी संवेदनशीलता के साथ दोनों देश यहाँ पर नजर आए हैं, उस दिशा में आगे बढ़े हैं। कारोबार आगे बढ़ना चाहिए, बाजार आगे बढ़ना चाहिए, व्यापार आगे बढ़ना चाहिए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होना चाहिए, रक्षा क्षेत्र में उत्पादन दोनों मिलकर करें, ये सारी दृष्टि, और एशिया में सुरक्षा और शांति।